बोलना कैसा लगा, सत्संग कैसा लगा? ಸತ್ಸಂಗ ಹೆಂಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತು ನಿನಗೆ? ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತ? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಏನಾಯ್ತು ಅರ್ಥ? ಚೂರು ಹೇಳ್ತಿ ಇಷ್ಟೇ ಹೇಳ್ತೀಯಾ? ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಗಳು ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಹಾಂ, ಮತ್ತೇನು ಹೇಳಿದ್ರು? ಇವ್ರೇನೋ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ನಿಮಗೆ? ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಗಳು ಬೆನ್ನು ನೇರ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸೀದಾ ಕೂರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಎಲ್ಲರೂ ಡೊಂಗ ಪಂಗ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಇದೆಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಇದೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಇದ್ರ ಅರ್ಥ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳಿದರು? ಇದೆಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಳೋದು ಅದೆಲ್ಲ ಮುಖ್ಯ, ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕಾರ ಮುಖ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ನನ್ನ ಸ್ವಂತಿಕೆ ಮುಖ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ನಾನು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಏನಂತ ಕೇಳಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದರು? ನನಗೆ ಸತ್ಯವನ್ನು ತೋರಿಸಿ ಗುರುಗಳೇ. ಹಾಂ, ಇದು ಯಾಕೆ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು, ಇದ್ರ ಹಿಂದೆ ಏನಿದೆ ಅರ್ಥ ಅಂತ ಕೇಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಹೌದಲ್ವ? ಕರೆಕ್ಟಾನ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಸರಿ. ಗುರು ಅಂದ್ರೆ ಸತ್ಯನ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಗುರು ಆಗ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಸತ್ಯವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡ ನಂತರ ಈ ಗುರು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಸತ್ಯವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡ ನಂತರ ಸದ್ಗುರು ಅವರು ಅಂತ. ಅದನ್ನು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಅರೆ ವಾಹ್, समझाइए पूरा सतगुरु का कल का समझे? हाँ, वाह, पूरा का पूरा अच्छा लगा? जैसा है वैसा। हाँ, यही होता है इनके बीज बो दो, ये उपजाऊ भूमि होती है ना। बढ़िया लगा सत्संग? ಬಡಿಯಾ ಮೀನ್ಸ್ ಅದ್ಭುತ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ? ಬೇಕಾಗಿತ್ತ ನಿಮಗಿದು? ಹಾಂ, ಬೇಕಾಗಿತ್ತ? ಮಸ್ತ್ ಕಲಿತೀರಾ? ಬೆನ್ನಿನ ಮೇಲೆ ನೇರ ಇಟ್ಕೊಂಡೇ ಕೂಡ್ತೀಯಾ? ಯಾವತ್ತು ಹಿಂಗೆ ಆಗಲ್ಲತ್ತ? ಎಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ಅವರು? ಬೆಂಗಳೂರು. ಬೆಂಗಳೂರಿನವರಾ? ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರಾ? ಅಪ್ಪದು ವಿಕೋಟ, ಅಮ್ಮದು ಕೋಲಾರ. ಹಾಂ, ನೀವಿಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದೀರಿ ನೀವು? और कोई प्रश्न है? ನೀವು ಕೂತ್ರಿ. ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದೀರಿ ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ? ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂಚೆ 4 ಜನ ಇದ್ವಿ. ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣಗೆ ಬಂದ್ಮೇಲೆ 3 ಜನ ಇದ್ವಿ. ನಾನು ಬಂದ್ಮೇಲೆ 2 ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ? ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರಾ? ಇಬ್ರು ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರಾ? ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದಾ? ನಾನು ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ಇದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದೀರಾ? ಭಾಯಿ और ये बड़े भाई एक छोटा भाई इधर है। दोनों माँ बाप बेंगलुरु में। और ठीक है। Yes, sweet. आप लोगों को सत्संग कैसा लगा? ಹಿಂದಿ ಸಮಸ್ತೆ? ಕನ್ನಡ? ಕನ್ನಡ. हाँ, तो कैसा लगा सत्संग? ಹೆಂಗೆ ಅನಿಸ್ತು ಸತ್ಸಂಗ ನಿಮಗೆ? ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. सीखने को मिला? ಏನಾದರೂ ಕಲ್ತ್ರ? कुछ सीखने को मिला? ನಿನ್ನೆ ಕಲ್ತ್ರ? ವೇದ ಕಲಿಬೇಕಂತ ಆಸೆ ಇತ್ತು. ಹಾಂ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ. ವೇದ ಕಲಿಬೇಕಂದ್ರೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ಬೇಕು, ಇದೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಹಾಕೋಬೇಕು, ಇದೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ. ನಿಮ್ಮ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಬೆನ್ನ ನೇರ ಯಾಕೆ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಸಿಟ್ಟು ಬಂದಿಲ್ಲ ತಾನೆ? ಇಲ್ಲ. हमारे ऊपर ಖುಷಿ ಪಡ್ತೀವಿ. मैं खुशी हम खुशी में गुस्सा क्यों करूं? ಖುಷಿ ಪಡ್ತೀವಿ. खुशी पड़तीरा? हम खुश हो रहे बोल रहे। बहुत सुंदर है। कितने खुश हैं? कितने खुश है, कैसे समझ ले? मुझे बिल्कुल आशा, मुझे भी, मैं अचंभे में हूँ। सेम ಪ್ಲೇಟ್ తీసుకునేలా కదా మరి ಸಣ್ಣ దగ్గర ನೋಡು. ಬ್ಯಾಗ್ನ ತಗೊಂಡು ಎಗ್ನೇಶಲ್ಲೇ ಬರ್ಬೇಕಂತ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲೇ ಬಂದ್ ಮಾಡಿ. ए जी, ये ना डालो यहाँ पे ना बेटा, लोहे का ना। उनका कुछ काम है। अच्छा, ठीक है। ಬ್ಯಾಗ್ ಎಲ್ಲ ತಗೊಂಡೆ ಎಗ್ನೇಶಲ್ಲೇ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಂತೆ. ಅಣ್ಣ ठीक है ಎಂತ ಸುಗಣೇಶಿ ब्रिलियंट, ब्रिलियंट। ಬ್ಯಾಗ್ ಬಕ್ಕಲ್ಲ. ಜನಾರ್ದನ್ ಎಲ್ಲಿಗೆ? अच्छा हुआ, सब कुछ हाँ, देखो ना कैसे कैसे सब कुछ समझ गया। समझ गया। हाँ, हाँ, यही होता है। सत्य को खोजो बोल रही थी ना, बोल रहा है। क्या कहना चाहेंगे इस पे? मैं ये कहना चाहूँगी कि ये बच्चों के अंदर एक उपजाऊ भूमि है, और कि कैसे इन बच्चों को हिंदी नहीं आ रही, लेकिन ये कैसे आपके भाव को समझे। हाँ, कैसे एक छोटे से बच्चे ने, हार्डली उस बच्चे की उम्र 7 या 8 साल रहेगी लास्ट, इससे ऊपर भी नहीं है, और वो कैसे आपके भाव को समझ गए, मतलब एक्सप्लेन कर दिया इनके सामने कन्नड़ में कि गुरु और सतगुरु में क्या अंतर है। तो यहाँ मुझे समझ में आई कि जो आपका भाव है, आपकी इंटेंशन है, वो लैंग्वेज का वहाँ पे कोई रोल नहीं है। एक निशब्द का जो एक उपजाऊ भूमि में आपने उनके अंदर रोपित किया, और वो कैसे उसने बखान किया, तो इससे पता चलता है कि लैंग्वेज कोई मैटर नहीं करती। अगर एक 100% कोई चीज़ है, उसके अंदर ये ताकत है
कि उसका कोई आवरण नहीं है, उसके अंदर जो प्रेम अद्भुत छलक रहा है ना, वो डायरेक्ट एक खाली, ये बच्चा एक खाली पात्र था, एकदम खाली पात्र, इतनी कम उम्र में। और यहाँ पे वेदांती, ये गुरुकुल बेंगलोर में है, यहाँ 5 साल के बच्चे को एंट्री है। तो उस बच्चे की इतनी उम्र है, वो तो 1-2 साल वो यहाँ रह भी चुका होगा। और वो उपजाऊ भूमि थी, वो खाली पात्र था, और आप पूरे लबालब जो छलक रहे थे, वहाँ भाषा ने रोल अदा नहीं किया, वहाँ एकदम वहाँ वो खाली पात्र के अंदर वो चीज़ें आप डाल पाए। और उसने कन्नड़ भाषा में जब एक्सप्लेनेशन दी गुरु सतगुरु जी, तो उससे ये चीज़ें यथार्थ होगी। तो मैं कहना चाहूँगी कि जो आप काम कर रहे हो एक छोटे बच्चों पे, जो खास करके जो मेरी बहुत ज़्यादा शुरू से लेके रहती है कि जो एक ढीठ बन चुका है, उन पे आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में, इवन मैं भी उसमें हो सकती नहीं, मैं भी हूँ, उस पर आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तब भी संभावना है कि शायद कोरा कागज़ हम ना बन पाएँ, लेकिन आपकी कृपा पे मुझे पूरा भरोसा है कि मैंने तो कितना भी गंद मचा दिया हो, लेकिन आप उसको साफ़ कर ही देंगे। लेकिन इन बच्चों पे जो मेहनत हो रही है, वहाँ पे कम मेहनत और ज़्यादा रिजल्ट की मुझे पूरी संभावना दिखाई दी आज। और आपकी करुणा कृपा को धन्यवाद कि आप यहाँ आए, और कैसे आपने एक बच्चे को आप पकड़ के ये चीज़ें। मुझे पता था बच्चे खूब समझ रहे हैं, मैं सुबह से ही बोल रहा था ना। हाँ। वो बहुत खुश है। बस यहाँ की संस्था वालों को कि वेदांत का जो आप असली अर्थ बता रहे हो, हाँ। वो उनके शास्त्र किताबी में नहीं है, तो कहीं ये जो मिसमैच इनको लग रहा है कि जो असल है वो बच्चे नहीं ग्रैब करेंगे। इनकी संस्था का टाइम टेबल एंड मैनेजमेंट सो अस्त व्यस्त हो, तो इन्होंने कल जो टाइम दिया, और आज ये इन्होंने बड़ा आदर दिया आपको कि वहाँ आपको बोलेंगे यहीं रहो, बट आपका मिशन जो है कि हर जगह जगह जाके आप एक भ्रमण पे मेरा निकले। कहना है समय बर्बाद नहीं करना हाँ। है। तो आपको जिज्ञासु चाहिए, आपका कहना होता है कि जिज्ञासु मिले तो आप वहाँ पे टिक जाओगे, जिज्ञासु नहीं मिला तो आपको आगे जाना ही चाहिए, क्योंकि हम 12 साल जंगलों में घूम गए हैं। हमें जहाँ जिज्ञासु हैं वहीं जाना चाहिए। हाँ, तो आपका अच्छा ये मिशन, और ऐसा ही होना चाहिए। और मैं ये कह रहा हूँ कि वेदांत का सीधा मतलब है कि आवरण से अपने आप को मुक्त करा लेना वेदांत ही कहा जाता है। जब आप आवरण से मुक्त हो जाते हो वेदांत का सहारा लेके, तो आप वेदांती हो जाते हो। आवरण से मुक्त होने के लिए वेदांत है। समय के पार जाना है आपको। वही पूरा का पूरा अगर हम अंदर उतर गए तो आवरण से पार हो सकते हैं, लेकिन अंदर उतारने वाले चाहिए। आवरण से मुक्त होंगे तभी आप उतर पाएंगे, तभी हम अपने आप में उतर पाएंगे, नहीं तो नहीं उतर पाएंगे। तो इसका मतलब पहले तो समझना तो है ना क्या है। इसलिए समझना है कि आवरण से मैं कैसे मुक्त हो जाऊँ, इसलिए समझना इसलिए जरूरी है कि मैं आवरण से कैसे मुक्त हो जाऊँ, उसके लिए समझना। अच्छा, हम भी समझ रहे हैं बच्चों के साथ। बच्चे बहुत अच्छा समझेंगे, मुझे परिशुद्ध है। क्योंकि जब मैं आया ना तो इनकी स्माइल, हाँ। जब हम शाम को बैठे थे ये मेरी तरफ ही देख रहे थे। हाँ। इन्हें और इनके चेहरे पे एक स्माइल, एक शांति था, वो मैं देख पाया। अच्छा। तो मैं बताया ना आपको कि बच्चे बहुत खुश हैं, बहुत। ये हमसे बात करना चाहते हैं। हाँ। क्या? हाँ, बात करना इसलिए कि मैंने इनके लिए बोला, कोई तो आया मेरे लिए बोला। अभी तो मुझे ये करने के लिए बोला जाता रहा, ये करने के लिए बोला जाता। कोई आया और मेरी भावनाओं को समझकर मुझसे बात की, मेरे जीवन का उपदेश बताया, मेरे लिए बोला, इसलिए ये खुश है। मुझे लगता है ऐसे अगर सेपरेट प्रत्येक का एक तो मिले तो बहुत समझ सकते हैं, आपको गला लगाना चाहते हैं, लेकिन सिस्टम के अंदर ऐसे बच्चे बातें नहीं। जिसको परमात्मा चाहेगा भेजेगा। देखो हम लोग निकले इंदौर से तो क्या है, यहाँ आने के लिए। जिसको देना होगा वो भेजेगा अपने आप। अच्छा है। आप सोचे थे क्या आप यहाँ आओगे, मैं यहाँ आऊँगा, आप सोचे थे क्या? ये प्रकृति की व्यवस्था है। और जैसे मेरा काम हो जाएगा, ठीक है, जैसे मेरा काम हो जाएगा मुझे जाना पड़ेगा, ठीक है। जिन बच्चों को आपके सामने आना था वो आ गए, बस अपने आप आ गए। बस। हाँ, अच्छा है। जब मेरा काम हो जाएगा तो मुझे कोई रोक नहीं सकता। हाँ, अच्छा, ठीक है। देखो अब एक घटना से आप समझ लेना। हाँ। हम लोग यहाँ रुकने वाले थे। हाँ। बोलो बेटा। आप कल दिए स्पीच ना, हाँ। बहुत अच्छा था।
हमको क्या आप ज्ञान दे रहे हैं। हाँ, हम क्या सोचे कि आप साधारण हो, आप साधारण आपके एक मनुष्य हो। हाँ, हाँ, अभी आफ्टर स्पीच हमको पता है कि आप ज्ञानी हो। हाँ, हमको ज्ञान देना हो, सो आप गुरु हो गए। आप सदगुरु हो। हम ब्रह्मास्त्र में बोलते हैं ना, हाँ। हम सभी है, हाँ, हाँ। हम करते हैं, हमारे अंदर में सभी है। इसलिए मेरे को अर्थ है आप कल जी स्पीच, बहुत धन्यवाद है आपको। ठीक है बेटा, अपना ख्याल रखना और इन शब्दों में जीना। अहम ब्रह्मास्त्र का मतलब अहम का नाश करो, ब्रह्म है। क्या है? हम का नाश करो, ब्रह्म। ब्रह्म है। मैं ब्रह्म हूँ ऐसा नहीं, अहम का नाश करो, ब्रह्म है। कौन है? ब्रह्म। ब्रह्म है। हमें अहम का नाश करना है। अहम ब्रह्मास्त्र में अहम का नाश करो, ब्रह्म है। ब्रह्मास्त्र में अहम ब्रह्मास्त्र में अहम का नाश। अहम मतलब अहंकार, ठीक है। अहम का नाश करो, ब्रह्म। ब्रह्मास्त्र में। हाँ। धन्यवाद जी। और कुछ कहना चाहते हो तो कहना, हाँ? खुलकर, कोई संकोच नहीं, कोई दबाव नहीं। हाँ, हाँ जी, मेरे को हिंदी नहीं, बहुत नहीं आते। ठीक है। लेकिन जितना अच्छा भी आता है आती बेटा आपको। कन्नड़ नहीं, इंग्लिश। अच्छा, जितना भी आती है। इंग्लिश में भी कुछ कहना चाहो तो कह सकते हो। मैं अभी क्या बोलते हैं, टाइम हो गया खाने अच्छा, का। ठीक है। आप ही हाँ, मैं खाऊंगा, तेलुगु। मैं अभी खाऊंगा। हाँ, अपना ख्याल रखना। हाँ? तो देखिए, यही मैं आपको बता रहा था। ये बहुत खुश है, ये मुझे पता चल गया। क्या? मैं जब भोजन करने आया ना, तो मुझे पता चल गया। तो मैं कह रहा था कि देखिए, प्रकृति की व्यवस्था कि हम लोग प्लानिंग किए थे कि अब यहीं से एयरपोर्ट चले जाएंगे, 23 तक रुकेंगे। फिर हुआ कि यहाँ से अच्छा आप वहाँ रुक जाइए। तो फिर हुआ कि नहीं, अब हम एक काम करते हैं, अभी या कल चले जाएंगे, फिर और लोग सत्संग हो सकता है कराएं। फिर हुआ कि नहीं, आप यहाँ चाहे जितना रुक सकते हैं, लेकिन अब हमारा फैसला हो गया, जाना है। कहने का मतलब है कि अच्छा। प्रकृति हमसे काम करवाना चाहती है और मुझे काम तक ही रोकेगी। आप मेरी बात समझ हाँ, पा हाँ, रहे समझ हैं? रहे, अगर समझ ये रहे। टोके नहीं होते तो हम रुकते, हाँ, और इन्होंने टोका हाँ, कि आप यहाँ से वहाँ हो जाए, वहाँ आपके लिए अच्छा है। तो हमारा भाव हुआ कि हम चले जाएं तो ज़्यादा अच्छा है। अच्छा। कि वहाँ हो सकता है, यहाँ कॉल भी नहीं आ रही है, वहाँ हो सकता है और लोग सत्संग सुनने आ जाए या सत्संग को ही रखे। फिर इन्होंने वही ऑप्शन दे दिया कि आप यहाँ ही रख सकते हो, लेकिन हमारा भाव हुआ कि नहीं, हम जाएंगे। तो प्रकृति हमें जितना दिन रखना चाहेगी और मुझसे कुछ काम करवाना है उसे, उतना दिन ही मुझे रखेगी। और मैं आपको फिर से कह रहा हूँ कि ये परमात्मा का कार्य है। परमात्मा खुद भेजेगा और पूरे विश्व में प्रत्यक्ष ज्ञान फैलेगा बहुत तेजी से। ये मुझे पता है, ये मुझे पता है। और ये पूरे विश्व में हर व्यक्ति के लिए है, हर समूह के लिए है, हर संप्रदाय के लिए है, हर मजहब के लिए है। हाँ, और कुछ आपको छोड़ना नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं कि ये मूल है। मतलब ये ऐसा नहीं कि आप इसे पकड़ के कुछ छोड़ना है, ना कुछ छोड़ना है ना पकड़ना है, समझना है। समझ रहे हो? अच्छा, बस समझना है, समझ समझना। बस समझना है, समझ के निकल लेना। और ये सबके लिए है, पूरे विश्व के हर व्यक्ति के लिए। हाँ, हर व्यक्ति के लिए, हर व्यक्ति के लिए। ये ज्ञान किसी का होता नहीं, जिसने समझा उसका हो। ये किसी व्यक्ति विशेष का नहीं होता। ज्ञान कोई समूह का नहीं है, कोई पंथ का नहीं, कोई मजहब का नहीं है। ये जिसने समझा उसका हुआ। और ज्ञान को हर व्यक्ति को ज्ञान की जरूरत है। और ज्ञान होता है, ठीक है। तो इसलिए प्रत्यक्ष ज्ञान पूरे विश्व में फैलेगा और सबको जरूरत है इसकी। ये सबको इसकी जरूरत है। और ये आखिरी है। क्या? ये आखिरी है, जरूरत है ही है। हाँ, इसकी जरूरत है। और आप देख भी पा रहे हो, आप देख भी पा रहे हो, देख भी पा रहे हो।
सबको जरूरत है, इसको भी जरूरत सबको जरूरत है। हाँ, कैसे कैसे खड़ा है देखिए, बहुत अच्छा लग रहा है। सबको जरूरत है। इसको भी जरूरत है, कैसे देख रहा है। नर्मदे सबको जरूरत है। और ये फैलेगा, ये अपने आप फैलेगा। हमें तो बस मेरे पास दिया है तो बस करना है। और कैसे